Good morning. In the first video, we discussed preparations of phenol. Today we are covering the reactions of phenol. Right? So reactions given by phenol. First and most common reactions of phenol is its acidic nature. Its acidic nature. The usual pKa of phenols is in the range of 9. So it is definitely much stronger as an acid. It is much stronger as an acid than water and alcohols. Okay, but still much weaker as an acid as compared to carboxylic acids. Right. Maintaining this, it will give following reactions. Its acidic nature, it will react with NH, forming PHO, Na, liberating hydrogen gas. It will react with sodium, half H2 will be liberated. And yes, from now onwards, please on STP take 1 mole gas, 22.7 liters occupied. Okay. If you treat it with NaNH2, then it is PHONa plus ammonia which is liberated. Okay. Similarly, अगर हम आगे बढ़ते जाएं, yes, it is reactive with aqueous NaOH, formation of PHONa. Due to formation of this salt, solubility of phenol in water will be increased. पहले नहीं घुल रहा था और अब घुल रहा है, ये possible है. Reaction with NaHCO3? No. Okay, but reaction with Na2CO3 will be yes. Okay, reaction with NaHCO3 is no, but it will react with Na2CO3 and form NaHCO3. Now, how much it will react and how much it won't react entirely depends on its K values. The second dissociation constant of H2CO3 is in the range. It is a weaker acid. HCO3 minus is a weaker acid than phenol. So this reaction will take place. But with NaHCO3, it will not give the usual reaction of effervescence. वो नहीं आएगी. Yes, certain substituted phenols, if taken, then they will definitely start exhibiting this particular property. And if we take substituted phenols, for example, let me write but that if you have a 1 nitrophenol and treat it with NaHCO3, answer is no. Okay, or let me write it in another way so that एक ही साथ काम हो जाए. If I take NaHCO3 aqueous solution and to it I add orthonitrophenol, no effervescence. Paranitrophenol, no effervescence. Okay. If I introduce 2 nitros and that too either on both ortho or one ortho, one para, then definitely yes, CO2 gas will be liberated. CO2 gas will be liberated. Picric acid, as you know, is a very strong acid. Just as a reminder, मैं यहाँ उसको ऐड कर रही हूँ. Picric acid. This will also liberate CO2 gas. It is a yellow crystalline solid and is highly acidic. Okay, so that can be used for this particular point. Is that clear? So when it reacts and when it does not react, I hope that is clear. Phenol is, ये मैं colorful pen से लिखूं कि dipole moment of phenol is non-zero. Okay, don't take these two OH as linear. They will be practically somewhat bent. So इसका dipole moment will be non-zero. Similarly, fumaric acid का dipole moment is also non-zero. It is also not easily oxidizable. It is also not easily cancelable दोनों साइड से. तो इनके dipole moment कुछ आते हैं, कुछ considerable आएंगे. So property number 2, let us go to its reduction.
रिडक्शन एज सच कोई अलग से करने का ज़रूरत नहीं था, बट स्टिल आई वांटेड टू डू रिमाइंडर जिंक डस्ट बेंजीन। एंड इफ आप निकल हाइड्रोजन से इसे करना चाहें, निकल हाइड्रोजन, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड high pressure, then cyclohexanol can be obtained. These are the two usual methods for reduction of this compound. ठीक, या तो हम इसे डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे विथ जिंक डस्ट, और वी हैव टू रिड्यूस इट विथ निकल हाइड्रोजन। प्रैक्टिकली ये थर्ड इज यूजलेस, ये सिर्फ इंटरनल एग्जाम के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज इसका कोई जेई में दूर दूर तक यूज नहीं है। बट हमारे यहाँ पूछ ले उसके डर के मारे कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड है ना, मोलिब्डेनम ऑक्साइड ये यूज किया गया, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ हीट करो, देन यू कैन हैव बेंजीन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिंक डस्ट जो एनसीईआरटी ने दी है। तो दीज आर इट्स रिडक्शन। जहां तक बात है इसके ऑक्सीडेशन की, सर्टेनली इट इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज। बहुत इजी है इसको ऑक्सीडाइज करना। हम अगर इसे KMnO4 में डाल देंगे, KMnO4, ओके, तो KMnO4 में तो टोटल रिंग रप्चर, टोटल रिंग रप्चर। अगर हम इसे माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है तो विल हैव फिनॉल, जैसे ऑलरेडी है तो आप डाकिन रिएक्शन ले लो, सॉरी एल्प्स पर सल्फेट ले लो, एल्प्स पर सल्फेट, यू कैन हैव पैरा पर, लाइक दिस कैटेकॉल बन जाएगा। आप इस पे फेंटन ले लो, Fe2 sorry FeSO4 plus H2O2, then also you can have, यूजुअली पैरा आर मेजर, तो हम पैरा पे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारे मेथड से हम इस तरह का ऑक्सीडेशन अचीव कर सकते हैं। वी कैन हैव सच टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। डैकिन में इसलिए हट गई क्योंकि डैकिन CHO की रिएक्शन है, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, इट इज phenolic aldehydes on oxidation will give this Dakin reaction. Okay, so this is how you can have oxidation of phenol or phenolic compounds. इसके अलावा इवन अगर हमने एयर में छोड़ दिया, then it is oxidized एयर की ऑक्सीजन से to parabenzoquinone. This is also a very common feature जो हमें देखने को मिलेगा, जो बहुत ही easy, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, I must say. And just for your own reminder, I am adding, you can have this reaction from aniline, you can have this reaction from quinol, you can have this reaction of amino, phenols, उनसे भी आपको ये reaction मिलेगी. You can have this reaction when you have both as NH2 NH2, तब भी ये रिएक्शन मिलेगी। ये सब इस तरह का कंपाउंड बना देंगे, ओके। और ये सब जब इस तरह का कंपाउंड बना देंगे तो ये कैसा दिखेगा? दिस इज अ पिंक और लाइट ब्राउन सॉलिड, इट इज अ पिंक और अ लाइट ब्राउन सॉलिड। इसका फॉर्मेशन इंडिकेट करेगा कि यस रिएक्शन हुई है, ओके। आते हैं रिएक्शन नंबर नेक्स्ट, दिस वाज ऑक्सीडेशन। Point number 4 is very famous. It is Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction. Okay. Now this Riemann-Tiemann reaction कैसे होगी? Riemann-Tiemann reaction will take place when phenol reacts with chloroform and KOH. I think सभी को ये reaction याद होगी. Formation of salicylaldehyde is major. Salicylaldehyde, this is Al,
as major and formation of para-hydroxybenzaldehyde will be minor. Okay, mechanism भी I guess सबको याद होगा, and it is formation of carbene CHCl3 plus QH will form dichlorocarbene. This dichlorocarbene attacks on, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है and conditions are of base, so यहाँ भी salt exist करेगा. Okay, so ये यहाँ पर इस तरह से reaction initiate होगी like this, and the product formed is HCClCl minus. Okay, then there will be a condition of tautomerization. It will become O minus. This becomes CHCl2. Now we have 2OH minus. We'll have SN2. As a result, O minus CHOH OH is formed, which on dehydration will give us O minus and CHO. अब ideally इसको followed by H plus होना चाहिए, but questions में ज़रूरी नहीं है कि ये दिया जाए, तो don't wait for that. Okay, and similarly para will be formed. Similarly, para product will also be formed. Similarly, para product will also be formed. ध्यान देने वाली बात यह है कि ortho and para products will be separated by steam distillation. Okay, they will be separated by steam distillation. इनका हम separation कर सकते हैं by steam distillation. They will be separated by steam distillation. Is that clear? हम इनको steam distill से separate कर सकते हैं. Oh yes, and O is ortho product is steam distilled. Steam distilled. जो ज़्यादा volatile होता है, जिसका boiling point कम होगा, वो steam distillation में जाएगा. Is that clear? There is this one exception I have to write that usually H bonding वगैरह की वजह से आंसर ऑर्थो पर ही आते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर में ड्यू टू स्टेरिक और whatever इसका आंसर para is major. Okay, this is major and 3 continuous जो आता है वो minor है. Is that clear? डाइक्लोरोकार्बन इस तरीके से अटैक करेगी. अटैक तो इसका सभी जगह देखा जाता है, जैसे एविडेंस की रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बन से ही हुई है, ये इसमें देखा गया कि व्हेन पैरामिथाइल फिनॉल लिया गया, पैराक्रिसॉल जिसे हम कहते हैं, और इस पर क्लोरोफॉर्म NaOH की रिएक्शन कराई. सो वी गॉट टू थिंग्स. वी गॉट दिस yes as a major product, but हमें बार बार ये चीज भी काफी स्टेबल रिलीज हो रही थी, ये भी बन रही थी. This was the evidence that yes, there was a formation of dichlorocarbene. Okay, on this similar track, please do these questions that I am writing. इनमें से कुछ हमने last week हाइड्रोकार्बन के दौरान किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो ये करना जरूर. If I take phenol और इसकी रिएक्शन CCl4, first KOH and second
फॉलोड बाय H प्लस जिसे कहें तो क्या बनेगा। मैं आंसर साथ ही लिख देती हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हें आंसर मिलता जाए। अगेन आई एम राइटिंग मेजर प्लस पैरा माइनर, ये आंसर इसमें आएगा। ठीक, सेकंड तुमने इसका एक लास्ट वीक करा है, इसे एबनॉर्मल रीमर-टीमन कहते हैं। CHCl3 plus KOH, then chlorobenzene is formed. This is called abnormal रीमर-टीमन। ओके, अगर आपने पायरॉल ले लिया और उस पर क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन कराई, then it is 3-chloropyridine which will be formed. ओके, ये सब रीमर-टीमन के ही अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस हैं। Then the next reaction given by phenols is this रीमर-टीमन was fourth number. Number 5 is Kolbe's-Schmidt reaction. Kolbe's electrolysis की बात हम नहीं कर रहे हैं. We are talking of Kolbe's-Schmidt reaction. Okay. Now what is Kolbe's-Schmidt reaction? आओ उस पे बनाते हैं, है ना? So next reaction is fifth number, Kolbe's-Schmidt reaction. It is reaction of phenol with CO2 in presence of NaOH followed by H plus forming salicylic acid. Forming salicylic acid as major. Okay, ये major component बनेगा. Clear? हाँ, minor is COH. Para-hydroxybenzoic acid. Again, it is steam distilled, and this will be the one जो steam distill off होगा. Correct. अब देखो NaOH के केस में, in case of NaOH, 6-membered TS is the reason for formation of O product as major product. O product as major product. Formation of 6-membered TS. कैसे 6-membered TS बनेगी, क्या बनेगा, आओ उसे बनाते हैं हम. तो O minus Na प्लस, तो बेसिकली मैं डेल प्लस और डेल माइनस लिख रही हूँ और ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड वीक हुआ. डेल नेगेटिव यहाँ पर रहेगा एंड दिस डेल नेगेटिव विल अट्रैक्ट डेल प्लस ऑफ CO2. एज अ रिजल्ट इस तरह की 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी. ओके, तो ऑर्थो प्रोडक्ट का मेजर होने का कारण इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग सेकेंडरी फैक्टर है. प्राइमरी फैक्टर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस TS. ओके, in if we use KOH, okay, in place of NaOH, if KOH is used in place of NaOH, in place of NaOH, then para products are major product. Para products are major products. Then para products are major products. अगर हमने KOH का इस्तेमाल करा तो. और ऐसा क्यों? Why this is so? देखो, पोटेशियम K plus is larger in size than Na plus. Larger in size than
Na plus. So its charge density is less. Density is less. So its polarizing power is also less. Polarizing power is also less. और वो इस तरह की जो हमने अभी अभी बनाई थी कि 6 मेंबर TS बनेगा, वो नहीं बना पाएगा. It will fail for formation of this particular TS. And इसलिए उसके अंदर हमें para products ही बनेंगे. Then para products are major products. रीजन हमने नीचे ऐड कर दिया कि क्यों para products बनेंगे. Is that clear? आगे बढ़ते हैं हम. तो ये हुई इसकी कोलबेज श्मिट रिएक्शन. तुम एक चीज देखो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप बनाओ, उसका अटैक लो ऑन ऑर्थो एंड पैरा, पैरा बीइंग द मेजर. अब बस रिएक्शन बढ़ती चली जा रही है. दैट इज हाउ फिनॉल वर्क्स. बल्कि जितना होगा इलेक्ट्रोफाइल उतना पैरा और ज्यादा होगा बस. नाउ आई एम राइटिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन with phthalic anhydride. Reaction with phthalic anhydride, it will form something very important, phenolphthalein. Phenolphthalein. Okay. पहले मैं तुम्हें नेट रिएक्शन याद कराना चाहूंगी. ओवरऑल इट इज EAS ओनली, पर ये इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी, है ना? थैलिक एसिड का अनहाइड्राइड इज थैलिक अनहाइड्राइड. इसकी रिएक्शन हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल से करानी है और ये एसिडिक मीडियम में होता है. ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन गुजरेगी. नेट रिएक्शन से याद करने का तरीका देखो, हमेशा H2SO4 वाटर एब्जॉर्बर है, वो हटा दिया हमने. वाटर हटा के बाकी जो भी चीज बची है, जो भी पोजीशन बची है, उसको ऐसा का ऐसा हमें कॉपी पेस्ट लिखना है. मतलब ये देखो, हमने जो H2O हटाया वहां से दो बॉन्ड खाली हुए. सो नेट रिएक्शन भी अगर तुम्हें याद हो तो नथिंग लाइक इट. इट इज अ white crystalline solid. White crystalline solid. और तुम्हें पता ही है कि अंडर बेसिक कंडीशंस इट चेंजेस इट्स कलर टू पिंक, है ना? पिंक में बदल जाएगा. आओ इसका मैकेनिज्म मैं बताऊं तुम्हें कैसे होगा. तो थैलिक एसिड अनहाइड्राइड जो है हमारा, उसको H+ से रिएक्शन हमने इनिशिएट करा. डेफिनेटली मोर पॉसिबिलिटी यहाँ है. सो इस तरीके से रिएक्शन शुरू हुई. करेक्ट. यहाँ पे डेल प्लस बन जाएगा. As a result of that, protonated phthalic acid anhydride, phenol is now in a condition to attack over here. OH, ultimately यहाँ भी OH ही आएगा. This is form. Right? अब देखो ये जो OH है, this is very good for formation of कार्बोकेटायन, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का प्लस आर मिलने वाला है, उसे बेंजीन का रेजोनेंस मिल सकता है. सो ये आगे फिर से कार्बोकेटायन बनाएगा. सो इसका अटैक एंड -H2O. एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर एक कार्बोकेटायन आने वाला है विच इज सपोर्टेड बाय रेजोनेंस. इस जगह पर हम फिर से एक और फिनॉल की
पैरा पोजीशन से अटैक ले लेंगे and we will get something like this. This is phenolphthalein, right? And I think तुम सबको पता होगा कि phenolphthalein is an indicator. Okay, it is an indicator and it under basic conditions, अगर strong basic में तो खैर colorless होता है, लेकिन less basic conditions में OH OH अगर हमने इसे अल्कलाइन कंडीशन में डाला माइल्ड, तो ये पहले इसका O माइनस ये डायनाइन बनाएगा विच इज कलरलेस, ये कलरलेस है. Okay, but this is in its quinide structure. This is in equilibrium with its quinide structure. O minus, O minus. This is pink. Okay. Pink color is formed due to this particular quinoid structure. अगर हम solution को और strong alkaline करते हैं, if we make it further alkaline on increasing the pH, it again becomes colorless. Again becomes colorless. इसके detailed structure के लिए I would suggest go for Wikipedia use. It is very good. Okay. This was, I think, reaction number 6 that we did, formation of phenolphthalein. 7th, formation of DDTA, जो हमने पहले कर लिया है. DDT, not DDTA. It was similar reaction, CCl3, CHO, 2 molecules of phenol with conc H2SO4. इसका मैकेनिज्म तुम अब अपने आप बनाओ. Oh, it is chlorobenzene which is used here, but the mechanism is similar, so better putting here this I'll put as a question. It was also a similar reaction. 7th, we are going to a reaction called Lederer-Manse reaction. Lederer-Manse reaction is reaction of phenol with formaldehyde. Okay, it is reaction of phenol and formaldehyde under basic conditions. देखो ये reaction acidic में भी हो सकती है. Acidic में you will initiate from the protonation of carbonyl, and basic में you will initiate from the protonation of, sorry, from the deprotonation of phenol. But दोनों ही condition में हमें इस तरह से reaction मिलेगी and major products are para. But yes, ortho are also formed alongside, that is all we can say. ठीक, ये फॉर्मेलिन से हम बनाते हैं 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin.
हम उसका यूज करते हैं। फॉर्मेलिन जो है ना, लैब में, बायोलॉजी लैब में जो सैंपल्स बॉटल में रखकर हम देखते हैं, है ना, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है, दैट इज फॉर्मेलिन। सो ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकती है। और इफ इट इज एसिडिक तो हमें मिलेगा OH प्लस HCHO एसिडिक मीडियम में, लाइक दिस। ओके, कंप्लीट तुम कर सकते हो। और अगर बेसिक मीडियम है तो ये O- से अटैक होगा। बस इतना अंतर आएगा। ओके, फाइनली दोनों में हमें अपना अटैक मिलने वाला है। ठीक, इसको भी चलो कंप्लीट कर ही दिया जाए। इन दिस ऑल्सो यू विल हैव OH CH2 OH। ऑफ कोर्स इफ इट इज एक्सेस तो और भी मिलेगा। और मतलब excess of formaldehyde if used, then we will get अब देखो, अगर आपने एसिड HCl लिया होगा ना, तो आपको ये एल्डिहाइड वल्डिहाइड नहीं मिलने वाला, अल्कोहल नहीं मिलने वाला है। हमें ये इस तरह के कंपाउंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, फर्दर अटैक शुरू हो जाएगा। ओके, अगर हमने एसिडिक, ये एक, अगर अंडर एसिडिक कंडीशन हमें एक और कंपाउंड मिलता है। ठीक, ये तो हमें बोथ विल गेट इन बोथ H प्लस और OH दोनों में चलेगा। इन एसिडिक वी विल ऑल्सो गेट, क्योंकि इसमें हम अलग ही तरह का डिहाइड्रेशन ले रहे हैं, तो एसिडिक में आपको इस तरह का भी कंपाउंड मिलेगा कि जो अल्कोहल है वो खुद फर्दर कार्बोकेटायन बनाकर और आगे बढ़ जाए। ठीक, नाउ दिस रिएक्शन is the base of Novolac formation. Novolac is it is used in paint industry as solvent. It is used in paint industry as solvent. Okay, याद करने के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, एक एडवर्टाइज आता है ना, नेरोलैक, नोवोलैक। आई थिंक दैट विल हेल्प। एनीवेज, जस्ट अ बैड ट्राई। खैर, तो नोवोलैक का पॉलीमर कैसा होता है, नोवोलैक का अपीयरेंस कैसा होता है? तो नोवोलैक looks like it's a linear polymer. ओके, OH ये यहाँ से आगे जुड़ जाएगा, फिर आगे इस तरह का एक लीनियर पॉलीमर जो बनता चला जाएगा, n number of phenol and n number of that particular structure से, then it is called novolac, है ना। और इसी का बेकेलाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक फर्दर ये रिएक्शन करा रहे हैं तो वी गेट अ डिफरेंट पॉलीमर। इट इज़ अ 3D polymer. It is a thermosetting polymer. It is a thermosetting polymer. It has a 3-dimensional structure. सब तरफ से इसमें अटैक होगा, सब तरफ से इसमें चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। और इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ नीचे बनाती हूँ नेक्स्ट पेज पर। OH ऑर्थो से हमारे पास और पैरा से भी लिंकेज हो सकते हैं।
further. ठीक, this surely can go on. ऐसे ये पढ़ते चले जाएंगे. ओके, इसकी ऑर्थो से भी और जुड़ सकता है, इसके पैरा से और जुड़ सकता है. सो इट इज अ 3D पॉलीमर. It is known as phenol formaldehyde resin. It is known as phenol formaldehyde resin. Okay, it is a condensation polymer. It is a cross linked polymer. मतलब 3D है ना, इधर से उधर काफी connections हैं और काफी hard है. Cross linked polymer. It is a copolymer क्योंकि दो अलग अलग monomers हैं, phenol and formaldehyde. It is used in electric switches, comb, utensils, etc. कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, कई जगह इसका इस्तेमाल देखा जाएगा. Okay, moving further, this was Beckelite formation. इसी तरह की आपको next reaction जो काम की है, this was Letermanase number 7. Moving to reaction number 8, जो आपको पता होनी चाहिए, is एक सेकेंड. That is okay, I guess. Reaction number 8 is a diazo coupling of phenol. देखो, phenol is dense, or I should say activated for years. Diazonium ion is a weak electrophile. Okay, N triple bond N plus Cl minus is a weak electrophile. हम further phenol की activity बढ़ाने के लिए we take mild basic conditions. हम slightly conditions को basic कर देंगे. So phenol becoming phenoxide. Okay, as a result of that, it is further activated and we get N double bond N. ये diazo dyes बनेगी. It is an orange color dye. ठीक, and color is due to extended conjugation. Color is due to extended conjugation. Extended conjugation की वजह से इसमें color आएगा. Okay, अब B. Pasha Roy. This is how I would suggest to write. I remember color of diazo dyes. अब इसमें कैसे कैसे क्या याद रखना है जरा ऐड किया जाए. B जो है ये बाइफिनाइल सॉरी बीटा नेफ्थॉल के लिए है. B is for beta nephthol. Okay, Roy, it gives a red dye. P is for phenol with pH N2 plus under basic condition. With pH N2 plus under basic condition. B. Pasha Roy O, orange dye. Structure here. A is for aniline with pH N2 plus but mild acidic conditions and we'll get a yellow dye. So Bipasha Roy, और जैसे भी तुम्हें करना हो इसे याद रखा जाए.
ओके ये एन कुछ नहीं, इट इज अ बेसिक EAS रिएक्शन ओनली। सिर्फ अटैक कहाँ से होगा ये तुम्हें ध्यान देना होगा, राइट? अब ये याद रखना कि डायज़ोनियम आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, इट नीड्स स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग लाइक फिनॉल, एनिलीन, नेफ्थॉल। इस तरह की रिंग्स ही से अटैक करेंगी। अगर आपने एनिलीन ले लिया, सॉरी टॉलिन ले लिया, एनिसॉल ले लिया, तो सिंपल डायज़ोनियम अटैक नहीं करेगा। देन यू नीड activated diazonium, and for activated diazonium what you need to do is you have to introduce strong electron withdrawing groups in diazonium ion, तब रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप सिंपल डायज़ोनियम लोगे और एनिलीन और एनिसॉल, सॉरी एनिलीन नहीं, टॉलिन और एनिसॉल पे रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि कैसे हम एक्टिवेट करते हैं एनिली डायज़ोनियम आयन को। तो presence of electron withdrawing groups like NO2 activates its electrophilic nature. Electrophilic nature. अगर आपने इस तरह के रिएजेंट डाले हैं तो वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को अटैक के लिए बढ़ा देगा। मतलब अब OMe है और उस पर हम सोचेंगे कि pH N2+ अटैक कर दे, बेसिक ले लो, एसिडिक ले लो, नो। लेकिन अगर आप PHOMe पर अटैक कराना चाह रहे हो, आप खूब सारे नाइट्रो लगा के डायज़ोनियम ले आओ, N2+, Cl-, NO2, NO2, और अब देखो रिएक्शन बिल्कुल पैरा पोजीशन पर होगी। ओके, दिस इज व्हाट आई सेड। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑफ दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट्स formed in this reaction are important, are commercially important, are commercially important. Why? As they are used as dyes, coloring reagent, है ना? Under the name, under the class, under the name diazo dyes, under the name diazo dyes के नाम से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। Is that clear? ठीक? And the color is due to extended resonance. Color of these dyes is due to extended resonance. जो बहुत अच्छा रेजोनेंस डेवलप हुआ है उसकी वजह से इनमें कलर का डेवलपमेंट हुआ है, which is the reason why they act as such bright color compounds and then they are used in various coloring actions. Okay, अब देखो अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इसमें डायज़ो अटैक करेगा? यहाँ पर, अंडर बेसिक कंडीशन। पर अगर अल्फा नेफ्थॉल अगर दिया जाए तो नो चॉइस, यहाँ पर डायज़ोनियम का अटैक लिया जाएगा। ओके, आई होप दैट इज परफेक्टली ओके जो अभी तक मैंने बताया। नंबर 9, आई एम गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉल्ड Lieberman's nitroso reaction. Lieberman nitroso reaction को मैं याद रखूंगी एज GRB बाथला पब्लिकेशन। इसमें पूछते हैं कलर की सीक्वेंस क्या है, कलर कहाँ आ रहा है। GRB, green, sequence of color is red, and then it is blue. This is how the sequence of color works in this particular. ओके, अब सवाल है कलर आता कहाँ से है, कैसे क्या इसमें कलर की ओरिजिन है। चलो पहले शुरुआत करते हैं, रिएक्शन क्या है। रिएक्शन इज फिनॉल विथ NNO2+ HCl शुरुआत होगी। फिनॉल की रिएक्शन होती है
मैं पहले सीक्वेंस लिखती हूँ फिर मैकेनिज्म लिखूंगी. ओके. Phenol is made to react first with NaNO2 plus HCl. सेकेंड उसमें हम कुछ NaOH डालते हैं. ओके. और ये यहाँ पर बीच में इथेनॉल भी डल सकता है कई बार. इसके बाद इथेनॉल ऐड करा जाता है डिसॉल्व करने के लिए और फिर NaOH डलेगा. तो ये है टोटल इसकी सीक्वेंस और हमें अल्टीमेटली एंड में ब्लू कलर मिलता है. GRB end product is blue. Now what is this reaction mechanism? है ना. सो देखो ये जो फिनॉल है NaNO2 plus HCl is source of nitrosonium ion. Para is a major product. हमें para nitrosophenol बनता है. What we get is a para nitrosophenol which is in equilibrium with its tautomeric structure NOH. हम इसे क्विनोन का ऑक्सीम बोल सकते हैं. मैं इसे बोल सकती हूँ इट इज मोनो ऑक्सीम ऑफ क्विनोन. ऑक्सीम क्या होते हैं? अल्डिहाइड कीटोन्स व्हेन रिएक्ट विथ NH2OH देन ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, उसे हम ऑक्सीम्स बोलते हैं. तो यहाँ पर इस तरह से अटैक हुआ और ये मोनोऑक्सीम हमारी बनी. अब ये जो मोनोऑक्सीम बनी है ये ग्रीन सॉलिड होती है. ग्रीनिश ब्राउन या ग्रीन या डार्क ग्रीन होती है. तो ग्रीन ब्राउन सॉलिड होती है. ओके. इसको हम जब इथेनॉल या तो एक्सेस फिनॉल डाला जाए या तो क्योंकि फिनॉल खुद भी खूब डायरेक्टली बहुत सॉल्युबल नहीं होता है तो हम इसमें इथेनॉल या फिनॉल ऐड करें. फिनॉल का बहुत मुश्किल है. इथेनॉल इज अ बेटर चॉइस. ये डिसॉल्व होना शुरू होता है. ओके. उसी कंडीशन में ये फर्दर रिएक्ट करता है. कंडीशंस हमारी एसिडिक हैं ही. ये प्रोटोनेट होगा और ये दूसरे मॉलिक्यूल फिनॉल पर अटैक करना शुरू करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल. इसने दूसरे फिनॉल पर अटैक कर दिया है. इसे हम कहते हैं इंडोफिनॉल. दिस इज रेड इन कलर GR. और अब जब हम इसमें बेस डालते हैं NaOH तो ये अपना अनायन बनाता है और वो जो अनायन है वो ब्लू कलर का होता है. O minus Na plus. This is a blue solution. Okay. So that is why हमसे पूछेंगे what is the sequence of color in Lieberman nitroso test. So ये बड़ा important test है. ये काफी लोगों को याद ही नहीं रहता है. Green solid, फिर red and for then blue. And the reaction is used as POC for phenol. Okay, Lieberman nitroso use होगा as a POC for phenol. ठीक. That was reaction number 9. फिनॉल की काफी रिएक्शन है बच्चों जैसे मैंने कल ही तुम्हें कहा था. नंबर 10th इज फ्राइज रीअरेंजमेंट. फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड देन कैसे. रुको एक सेकेंड. Phenolic esters COR when they are heated strongly with AlCl3 they get rearranged. Okay, they get rearranged to orthoacyl and paraacyl phenol. और इसमें थोड़ा सा उल्टा है. थोड़ा सा
डिफरेंट है, हमें याद रखना पड़ेगा। ये पैरा प्रोडक्ट जो है ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है एंड दिस इज ऑब्टेन मेजर एट 80 डिग्री, जबकि ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है और ये हमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर मिलेगा। ओके ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो आई होप इट works for you. It is both intermolecular as well as intramolecular reaction. जहाँ तक इसके मैकेनिज्म का सवाल है, it is both inter and intramolecular rearrangement, दोनों देखने को मिलता है इसमें। तो दोनों देखने को मिलेगा मतलब होता क्या है इस रिएक्शन में, आओ पहले वो बताऊं। OCOR, इसको जब हम AlCl3 में हीट करते हैं, ये अडक्ट बनाया है इसने OCO, ये AlCl3 माइनस O प्लस R बना। अब ये फ्री एसाइलियम बना देगा। दिस फॉर्म्स OAlCl3 माइनस एंड RCO प्लस, जो इसी पर भी अटैक करे और इसके कोई अलावा अटैकिंग स्पीसीज अवेलेबल है वहां भी अटैक कर सकता है। और जब ये अटैक करेगा EAS पर तो जो H निकलेगा रिंग से वो H मैं यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, तो ये OHCOR इस तरीके से बनेगा। और क्योंकि बाहर से आकर असाइलियम अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली पहले जो अटैक होगा है ना, वो कहाँ होगा, वो पैरा पर होगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। उसके बाद अगर हम और करें तो डेफिनेटली वी कैन गेट सम ऑर्थ अटैक, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक, ये हमारी मेजर रिएक्शंस हो गई हैं। अदर रिएक्शंस आई वुड से पूरी मैं लिस्ट कर रही हूँ इज इट्स हैलोजनेशन, जो आपको पता है कि ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक, नाइट्रोसेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रोसेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल और क्या देता है, फिनॉल देता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, राइट। फिनॉल देता है फ्रिडल क्राफ्ट के अलावा गैटरमैन, कॉच एंड गैटरमैन aldehyde synthesis reactions, ये सब इसकी रिएक्शन है। गैटरमैन कॉच इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, गैटरमैन aldehyde is HCN प्लस HCl AlCl3, दोनों में बेंजल्डिहाइड बनता है। ओ सॉरी, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन की ही रिएक्शंस हैं, उसी तरह से होती हैं, नथिंग स्पेशल अबाउट देम। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इज POC ऑफ फिनॉल्स, जो तुम्हें याद रखनी है कि फिनॉल्स को आप किन किन रिएक्शन से कंफर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स इज न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम कहेंगे फिनॉल्स गिव वायलेट coloration with neutral FeCl3। अब ये बहुत बहुत उचित नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग चीजें देता है। ओके, तो ऐसा पक्का नहीं है कि यही बनेगा, बट ये भी बन सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये टेस्ट अलग अलग, बोले अलग अलग कंपाउंड तो हमें क्या मतलब, हम तो फिनॉल्स लेंगे ना। नहीं, मैं फिनॉल्स में ही बात कर रही हूँ। ओके, फिनॉल्स के अंदर ही ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड कलर्स देता है।
और यहाँ फेरिक FeOH मतलब जो प्रोडक्ट बनता है ये वायलेट कलरेशन, ये FeOPH6 3+ टाइप ये बनता है। जैसे कुछ चीज़ों के साथ ये ब्राउन देता है, कुछ के साथ ये ग्रीन कलर भी देता है। जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक सैलिसिलिक एसिड के साथ, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड भी क्या बोलना चाहिए, फिनोलिक ग्रुप रखता है। इट ऑल्सो हैज फिनोलिक ग्रुप, सो वहां पर ये देगा कलर ग्रीन। इज दैट क्लियर? तो पर्पल भी वर्ड हो सकता है न्यूट्रल FeCl3 वायलेट की जगह, ग्रीन हो सकता है, कई बार ब्राउन भी देता है कुछ चीज़ों के साथ। तो इसका कुछ फिक्स नहीं है, बट बेसिक फिनॉल के साथ वी कैन गो बाय पर्पल और वायलेट coloration. Okay, that will be our first test. Second, of course, इसका एसिडिक नेचर हम यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग। थर्ड, हम लिटमस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इट विल एक्ट एज एन एसिड, तो एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। ठीक। फोर्थ, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि इसका लिबरमेन नाइट्रोसो टेस्ट या नाइट्रोसो रिएक्शन यूज करा जा सकता है, जिसमें GRB है। सम स्पेसिफिक फिनॉल्स मतलब मैं बात कर रही हूँ कैटेकॉल, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइजेबल है ना। दे गिव फिलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट ऑल्सो। ठीक। सिक्स्थ, हम कह सकते हैं फिनॉल प्लस ब्रोमिन वाटर। ओके, फिनॉल प्लस bromine water, appearance of white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. Right, so these are all the tests for phenols, and here we end phenol. ठीक, इसे रिवाइज करो, NCERT से रेफर करो, सिलेबस में जो चीज़ें मेन हैं उन पर ध्यान दो। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन।